Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा। तो जैसे हम जानते हैं कि हम श्रीमद् भागवतम से पठन कर रहे हैं। पहला स्कंद 9वां अध्याय और 40वां श्लोक है और ये भीष्म स्तुति के अंतर्गत आता है। तो हम क्लास शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो श्लोक इस प्रकार से है। ललित गति विलास वल्गुहासा। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितरु मनः। प्रणय निरीक्षण कल्पितरु मनः। कृतमनुकृतवत्य अनुमाधा। कृतमनुकृतवत्य अनुमादा। प्रकृतिं मग्न किल यस्य गोपवधव। प्रकृति मगन किल यस्य गोपवधव। हरे कृष्णा। तो इसका ट्रांसलेशन एंड परपट एज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। The translation: Let my mind be fixed upon Lord Sri Krishna, whose motions and smiles of love attracted the damsels of Vrajadham, the gopis. The damsels imitated the characteristic movement of Lord after his disappearance from the rasa dance. Purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. By intense ecstasy in loving service, the damsels of Vrajabhumi attained qualitatively oneness with the Lord by dancing with him on an equal level, embracing him in nuptial love, smiling at him in joke, and looking at him with a loving attitude. The relation of Lord with Arjuna is undoubtedly praiseworthy for devotees like Bhishma Dev. But the relation of gopis with the Lord is still more praiseworthy because of their still more purified loving service. By the grace of Lord, Arjuna was fortunate enough to have the fraternal service of the Lord as chariot driver. But the Lord did not award Arjuna with equal strength. The gopis, however, practically became one with the Lord by attainment of equal footing with the Lord. Bhishma's aspiration to remember the gopis is a prayer to have their mercy also at the last stage of his life. The Lord is satisfied more when his pure devotees are glorified, and therefore Bhishma Dev has not only glorified the acts of Arjuna, his immediate object of attraction, but also remembered the gopis who were endowed with unrivaled opportunities for rendering loving service to the Lord. The gopis' equality with the Lord should never be misunderstood to be like the Sayujya, liberation of the impersonalist. The equality is one of the perfect ecstasy when the differential conception is completely eradicated for the interest of the lover and the beloved become identical. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Gnananjanashalakaya Chakshurunnilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayan Tadati Swapadam Namam Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale.
आचार्य पादाय निताय पादाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम पहले तो गोपी मनोहर प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कल मुझे रिमाइंडर भेजा तो मुझे याद आया, क्योंकि वो मैं मैसेज पहले मिस कर गया था कि मेरा क्लास कभी है। और लिस्ट जो मैसेज में भेजी थी वो मेरे से मिस हो गई, और कल मैंने दोपहर के समय पर जो है ये मैसेज देखा जो रिमाइंडर आपने भेजा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अदरवाइज टुडे इन द मॉर्निंग इट वुड बी हैविंग अ chaotic सिचुएशन कुछ पता नहीं था मुझे। तो एनीवेज इस श्लोक से हम प्रयास करते हैं जो मैंने समझा है, जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से, और जो मैंने सुना है उसके हिसाब से हम कुछ प्रश्न हैं, टोटल 5 प्रश्न हैं जो आज हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो 5 प्रश्न क्या हैं वो पहले प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर एक एक प्रश्नों को हम लोग जो है उसका उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले 5 प्रश्न कौन से हैं, तो यहाँ पर इस जो तात्पर्य और इस श्लोका से हमको क्या ज्ञात होता है, क्या ज्ञान मिलता है, वो हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो प्रश्न ये उठता है कि शिला प्रभुपाद गोपीज की जो ये सिस्टम है, जो भगवान को पूजने की, भगवान की आराधना करने की है, भगवान को सर्विस देने की, भगवान की सेवा करने की, ये सिस्टम को प्रभुपाद क्या बताते हैं, उसके बारे में प्रभुपाद क्या बताते हैं अपने लेक्चर्स के अंदर। और प्रभुपाद अपने जो पर्पट्स लिखे हैं उन्होंने, उनमें प्रभुपाद इन गोपीज की जो पूजने की जो सिस्टम है उसको क्या कहते हैं और क्या उसके बारे में लिखते हैं। दूसरा प्रश्न ये आता है कि जिस तरह गोपियां हैं, और गोपियां उच्च स्तर पर जो एक भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो दूसरे प्रयास कर रहे हैं, जैसे हम प्रयास कर रहे हैं, तो वो कौन ऐसे कितने लोग हैं, कितने प्रकार के लोग हैं जो उस जो है इस लाइन में या इस जो पंक्ति में लगे हुए हैं, जो आगे जाके गोपीज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं, उनको प्रयास करना चाहिए। तो वो ऐसे कितने प्रकार के लोग हैं। उसके बाद में आता है कि उस ये पद्धति कौन सी है जिसके द्वारा हम गोपीज की जो स्थिति तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न होगा। और चौथा प्रश्न है जो इससे कनेक्टेड नहीं है, मगर क्योंकि परपट ये जो पूरी जो बात हुई है या विश्व में जो स्तुति कर रहे हैं वो कुरुक्षेत्र के अंदर हो रही है, तो कुरुक्षेत्र की महिमा जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं, जो वृंदावन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र की महिमा इतनी ज्यादा बताई है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने, तो वो हम समझने का प्रयास करेंगे। और लास्ट के अंदर जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस श्लोक के द्वारा बताई गई है, वो भीष्म जी जो है गोपीज को क्यों संबोधित कर रहे हैं, या गोपीज को क्यों उनका स्मरण कर रहे हैं, और गोपीज की बात यहाँ क्यों आई। तो पहले हम ये देखते हैं कि पहला प्रश्न था कि गोपीज के बारे में, गोपीज की जो सिस्टम है उसके बारे में श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं अपने तात्पर्यों के अंदर, अपने जो लेक्चर्स के अंदर। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी ने ये बताया है कि गोपीज ने जो ये सिस्टम जो इन्होंने इन्वेंट की है, वो द बेस्ट सिस्टम है। अभी गोपीज, पहले तो ये समझना पड़ेगा हमको कि इन्वेंशन क्या होता है और डिस्कवरी क्या होता है। तो इन्वेंशन होता है यानी किसी चीज का आविष्कार करना, और डिस्कवरी होती है किसी चीज को खोजना। यानी डिस्कवर मतलब कोई चीज जो लुप्त हो गई है, गुम हो गई है, उसकी खोज करके हमने उसको चीज को वापस किया है, तो वो डिस्कवरी हो गई। और इन्वेंशन क्या है, जो कुछ हमने नया कुछ आविष्कार किया है। तो गोपियों ने, प्रभुपाद यहाँ पर डिस्कवरी नहीं लिखते हैं, प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं कि जो गोपीज ने सिस्टम क्रिएट की थी, या जो सिस्टम उन्होंने इन्वेंट की थी, जो उन्होंने आविष्कार किया था गोपीज ने, वो सबसे बेस्ट है। ये श्रील प्रभुपाद गोपीज की सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। तो अभी ये समझने का हम प्रयास करते हैं कि
कि गोपीज का इन्वेंशन क्या था। तो गोपीज का इन्वेंशन ये है कि भगवान श्री कृष्ण के जो है, हम लोग जैसे कहते हैं कि हमेशा कृष्ण कॉन्शियस रहना, यानी हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करना और 24 घंटे। और वो कैसे था कि हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करना, पर उससे किसी भी भौतिक लाभ के लिए उनसे कुछ मत, भगवान को इसलिए याद नहीं करना कि उनको कोई भौतिक आसक्ति हो, नहीं, वो भगवान को याद करती थी, सिर्फ भगवान को याद करना। और वो कैसे, सतत याद करना। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इट इज द सुपर एक्सीलेंस। ये जो सिस्टम है सुपर एक्सीलेंस है। भगवान से कुछ भी मतलब जो है अहेतु की, जिसको बोलती है अहेतु की, मतलब सेवा करना। कोई भी चीज के अंदर, मतलब जो भी सेवा करती थी उसके अंदर कोई भी हेतु नहीं था, उनको कोई भी मतलब जो है, उनको ये नहीं था कि भाई मैं, जैसे अभी कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि कृष्णा वी हैव डन सो मच फॉर यू, हमने आपके लिए बहुत कुछ किया, हमको ये जो है जो वरदान चाहिए। ऐसा कभी भी गोपियों ने नहीं किया। तो ऐसा जो भक्ति करता है, दैट इज द फर्स्ट क्लास वर्शिप। श्रील प्रभुपाद इसको कहते हैं दैट्स द फर्स्ट क्लास वर्शिप। तो हम गोपियों से नेवर टू आस्क, पहले तो गोपियों से हम लोग क्या सीखते हैं कि कोई भी चीज की मांग नहीं करनी, और न ही किसी चीज को जो हम सेवा करते हैं उसका एक्सपेक्टेशंस रखना। तो लेक्चर्स के अंदर ये भी बताते हैं कि एक्सपेक्टेशंस जो आदमी रखता है, जब उसका एक्सपेक्टेशंस के ऊपर आदमी खरा नहीं उतरता है तो आदमी दुखी होता है। तो एक्सपेक्टेशंस इज वन ऑफ द रीजन द पीपल दे गेट मतलब डाउन, और उससे उन लोगों को तकलीफ होती है। तो नेवर टू आस्क और एक्सपेक्ट, ये जो हम गोपियों से सीखते हैं जब भी हम सेवा करते हैं। तो अगर फिर बाद में प्रश्न ये आता है कि अगर कोई, जैसे अभी प्रश्न उठता है कि अगर हम भगवान से नहीं मांगे, भगवान अगर आ जाते हैं और भगवान हमसे कहते हैं कि आप मांगो, और हम नहीं मांगेंगे, तो ये भी गलत है। तो फिर ऐसे स्थिति में अगर भगवान आते हैं या भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं, वो अगर हमसे कहते हैं कि आप मुझसे मांगो, मैं आपकी जो सेवा से बहुत जो है संतुष्ट हूँ, तो आप मुझसे कुछ मांगो, वरदान मांगो, तो अभी हम दुविधा में आ जाएंगे। उस समय हमको क्या करना चाहिए? तो उस समय हमको प्रहलाद महाराज की जो स्तुति है वो याद करनी चाहिए, जिसके अंदर प्रभुपाद जो बताते हैं प्रहलाद महाराज ने कैसी स्तुति की थी। जो प्रहलाद महाराज की स्तुति क्या है, यदि दास्यासि मे कामान वरं त्वां वरदर्शभ कामानां हृदय संभ्रो भवतास्तु वृणीवनम्। यानी वो कहते हैं कि अगर आप मुझे आपका दास्य, प्रहलाद महाराज कहते हैं नरसिम्हा भगवान से कि अगर आप मुझे अपना दास समझते हो और आप तो हर जो वरदान देने के सक्षम हो, आप तो भगवान हो, आप तो हर वरदान दे सकते हो, तो केवल इतना वरदान मुझे दीजिए कि मेरे हृदय के अंदर जितने भी कल्मश हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो यदि दास्यासि मे कामान वरं त्वां वरदर्शभ, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरे हृदय के अंदर जो भी इच्छाएं हैं, जो भी भौतिक इच्छा हैं, वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। तो ऐसा वरदान हमको मांगना चाहिए। या तो फिर गोपियों की तरह कुछ भी पूछो नहीं, कुछ भी मतलब भगवान से कुछ मांगो नहीं, और नहीं कुछ भगवान से एक्सपेक्ट करो, खाली सेवा करते जाओ। दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम द गोपीज। नाउ लाइक समवन टेलिंग आई लव यू, आजकल क्या होगा, सब क्या कहते हैं कि आई लव यू वेरी मच, और बाद में क्या कहते हैं, बाद में डिमांड करते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मैं आपके लिए ये करता हूँ, मैं आपके लिए यही करती हूँ, मगर मुझे तनख्वाह नहीं मिलती, मुझे पगार नहीं मिलती, आप मुझे ये तो दो, वो तो दो। तो ये जो है ये लव नहीं है। तो यहाँ हम लोगों को इससे, गोपियों से ये सीखना चाहिए, नेवर आस्क एंड नेवर एक्सपेक्ट। उसके बाद में आता है कृष्णा। गोपियां क्या कहती है भगवान कृष्ण से कि हमारे पास जो भी है, पहले तो हम आपसे, गोपियां कहती है वी डू नॉट आस्क एनीथिंग, हम आपसे कुछ भी नहीं मांगती, और जो भी हमारा है वो तो आपका है ही है। तो ये गोपियों का भाव है, ऐसे हमसे सीखना चाहिए। और सर्वभौम प्रभु एक लेक्चर के अंदर बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि वो कहते हैं कि एक मतलब धनी था, वो धनी के घर पे, और धनी बहुत अच्छा भक्त था भगवान का, तो उसके घर पे जो संत आए, तो संत ने जब भी उनके घर के अंदर आए, तो संतों ने उनके घर के अंदर, जब आंगन में उन लोग अंदर आए, तो संतों ने उनसे ऐसे ही कहा कि देखो आपका जो ये घर बहुत सुंदर है। तो ये कहा, तो जो धनी था उसने कहा ये भगवान का है, ये भगवान का दिया हुआ है। उसके बाद में अंदर गए, तो जैसे संत अंदर जो उसके घर के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, तो उन्हें कहा कि आपके घर के अंदर जो ये इतनी सुजित है, इतना अच्छा सुंदर सजावट है, ये बहुत सुंदर है। तो उन्होंने कहा ये भगवान का दिया हुआ है।
और ये भगवान का है। उसके बाद में आगे के कमरे के अंदर, उसके बाद में उन्होंने देखे तो उनके बच्चे इतने जो है उनके अंदर इतनी अच्छी सभ्यता थी बच्चों के अंदर, और बहुत ही अच्छे गुण थे बच्चों के अंदर। तो ये देखकर संतों ने कहा कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर अच्छे गुण समाये हुए हैं। तो ये कहा कि ये भी भगवान का दिया हुआ है। उसके बाद में आगे गए तो वहां पर उन्होंने अंदर एक कमरे के अंदर देखा कि बहुत ही सुंदर वहां पर अल्टार था, वहां पर मतलब डेटीज बहुत ही सुसज्जित थे, इतने अच्छे श्रृंगार के अंदर थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मंदिर आपका जो बहुत अच्छा है, तो बोला ये भी भगवान का है। तो जब भी उसके अंदर बोला ये ठाकुर जी इतने अच्छे सुंदर हैं, इतने अच्छे उसको वस्त्र पहनाए हुए हैं, तो बोला ये भगवान कितने अच्छे रहे। तो बोला ये भगवान जो है ये भगवान मेरे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि सब कुछ भगवान का है और भगवान मेरे हैं। तो इनवेरिएबली यही हो जाता है कि सब कुछ मेरा है, मगर मैं ये नहीं कहता कि मेरा है, मगर ये सब भगवान का है और भगवान मेरे हैं। तो ये हमको समझना चाहिए, इस प्रकार हमारा भाव होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि गोपियों के स्तर, एक दूसरा प्रश्न था कि गोपियों के स्तर तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो गोपियों के स्तर तक पहले पहुंचने के लिए तो पहले कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं जो इस पद्धति पे चल रहे हैं। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक के अंदर बताया गया है कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो यहाँ पर बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग होते हैं जो हमेशा भगवान की सेवा में या भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं। तो उससे पहले बताया है कि अर्थ, तो अर्थ यानी जो आदमी डिसीज है, परेशान है, पर अपने शारीरिक तकलीफें हैं उसको किसी प्रकार से वो डिसीज्ड है, वो अर्थ हो गया। उसके बाद अर्थार्थी, अर्थार्थी यानी जिसको धन की आवश्यकता हो, वो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग जाते हैं भगवान के पास आकर्षित होते हैं। उनको जब इनकी जरूरतें होती हैं तो वो जाते हैं मंदिर में, चर्च में, गुरुद्वारे में, उधर जाके भगवान के पास जाके भगवान से ये चीजें मांगते हैं। उसके बाद में तीसरा और चौथा कौन सा है, तो जिज्ञासु और ज्ञानी। ये उनसे थोड़ी अच्छे ऊपर स्तर पर है, क्योंकि इनके अंदर जिज्ञासा रहती है कि भगवान कहाँ है, भगवान कौन है, भगवान क्या करते हैं, ऐसे प्रकार के जो इनके जिज्ञासा होती है। और ज्ञानी होता है जो हमेशा भगवान के बारे में जानने का प्रयास करता है, उसके बारे में वो हमेशा उत्सुक रहता है। तो ये चारों प्रकार के भक्त हैं। ये भक्त नहीं है, मतलब ये भक्त बनने का प्रयास करते हैं, मगर क्योंकि ये भगवान को हमेशा याद करते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं इन चीजों के लिए, ज्ञान के लिए, और जिज्ञासु हैं इसके लिए, अर्थ के लिए, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, और अर्थार्थी यानी धन के लिए। तो वो हमेशा क्या करते हैं, वो भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना क्या है, वो एक प्रकार की वो भी सेवा है। तो उनको क्या बेनिफिट मिलता है, तो इनको भी बेनिफिट मिलता है। भले वो इसके अंदर उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ चाहते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस होने के बावजूद भी उनको भगवान जो है उनको बेनिफिट मिलते हैं। तो ये बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं, तो उसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर आप अग्नि के पास जाओगे तो आपको रोशनी तो मिलेगी ही, साथ साथ आपको गर्माश भी मिलेगी। तो भगवान की जब आप भक्ति करोगे तो आपको ज्ञान और ये सब तो मिलेगा ही, साथ में आपको उसका दूसरा बेनिफिट होगा कि आपकी सुकृति शुरू होगी और आप धीरे धीरे अग्रसर होगे और भक्तों का संग मिलेगा। तो ऐसे करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो 4 प्रकार के लोग हैं, ये इस लाइन के ऊपर है। कि यहाँ पर उसके बाद में प्रश्न आता है कि भाई ये सब, अगर ये 4 लोग हैं, इनको अगर आगे बढ़ना है और उस स्थिति तक पहुंचना है, कौन सी स्थिति तक, यानी हमको अगर गोपियों की स्थिति तक पहुंचना है तो उनके लिए कौन से प्रोसेसेस हैं। तो यहाँ पर बताते हैं डिवोशनल सर्विसेज के 9 प्रोसेसेस हैं, जिसको हम कहते हैं श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदन। इसके हर एक का जो एक उदाहरण है। जैसे श्रवणम के लिए हम याद कर सकते हैं कि जैसे परीक्षित महाराज ने किया था, यानी सतत सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना। और उसके बाद में कीर्तनम, तो कीर्तनम हम किससे सीखते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी से, जिन्होंने सतत उनको जो है भागवतम का पूरा ज्ञान दिया था। उसके बाद विष्णु स्मरणम, हमेशा कैसे याद रखना चाहिए विष्णु जी को, तो प्रहलाद महाराज से हम ये सब सीख सकते हैं। तो जब हम ऐसे जो भक्त हैं उनके जो आचरण पर चलेंगे तो हम उस स्थिति तक, यानी गोपियों की स्थिति तक हम पहुंच सकते हैं। पाद सेवनम, उसके बाद में पाद सेवनम यानी कैसे, तो लक्ष्मी जी, हमेशा जो लक्ष्मी है
जिसके पीछे पूरी दुनिया जो है उसके पीछे लगी हुई है उसको पाने के लिए, वो किसकी सेवा करती है? वो पाद सेवनम कर रही है, अपने चरणों का सेवन कर रही है, चरणों की जो सेवा कर रही है वो किसकी सेवा कर रही है? विष्णु जी की। तो लक्ष्मी जी से ये सीखना चाहिए। उसके बाद अर्चना, तो कैसे? महाराज पृथु से हमको सीखना चाहिए। वंदनम किससे सीखना चाहिए? तो महाराज जो अक्रूर है, अक्रूर जी से। उन्होंने, उनकी क्या इच्छा थी? भगवान को जो है भगवान का दर्शन करे, और उन्होंने उनका दर्शन किया। जब वो सायंकाल के अंदर जो जब इसमें नदी के अंदर जो जाके अपना ये संध्या कर रहे थे। दास्यम, या दास्यम किससे सीखना चाहिए? तो हमको हनुमान जी से सीखना चाहिए। सख्यम, साख्यम किससे सीखना चाहिए? तो अर्जुन से सीखना चाहिए। और आत्मनिवेदन किससे सीखना चाहिए? तो बलि महाराज से। तो जिस तरह ये जब हम इनके पद चिन्हों पर चलेंगे तो हम जो है अग्रसर होके गोपियों की स्थिति तक हम पहुंच सकते हैं सतत प्रयास से। तो जी श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि गोपीज की जो एक्टिविटीज हैं, गोपीज की जो जितने भी कार्य हैं, वो सुप्रीम प्लेटफॉर्म पे हैं, क्योंकि वो भगवान को मतलब वो भगवान से कुछ नहीं चाहते, वो भगवान से कुछ चाहते नहीं है, भगवान से कुछ मांगते नहीं। तो यहाँ पर मतलब इस ऐसी स्थिति में भी मतलब कुछ भी करना है भगवान के लिए, जो भी है मतलब तत्पर होके हमको करना है। तो यहाँ पर एक लीला याद आती है जहाँ जिसके अंदर बताते हैं कि जब श्रील भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका के अंदर थे, तो द्वारका के अंदर उन्होंने एक बार ऐसे ही कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। और जितने भी वहां पर फिजिशियन थे, जितने भी वहां पर डॉक्टर्स थे, या जितने भी वैद्य थे वहां पर, वो उन्होंने गए उनके पास, तो बोले कि मेरे सर का दर्द खत्म नहीं हो रहा है। तो कृष्ण ने फिर अपने आप ही बताया कि मेरी जो इस सर के दर्द का इलाज एक ही है कि जाओ मेरे जो जितने भी मेरे भक्त हैं उनके चरण की धूली लाओ, और वो मेरे सर पर लगाओगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा और मेरा सर का ये दर्द गायब हो जाएगा। तो जितने भी द्वारकावासी थे उन्होंने कहा कि भाई अगर हम अपनी चरण धूली देंगे भगवान श्री कृष्ण के मतलब माथे पे लगाने के लिए, उनके मस्तिष्क पे लगाने के लिए, तो हम तो नर्क में जाएंगे, ये तो हम कभी कर ही नहीं सकते। मगर गोपियों ने क्या किया? गोपियों के पास जब वृंदावन के अंदर जाके उनको पूछा गया, तो उन्होंने कहा जितनी चाहिए इतनी धूल ले लो। तो तभी उनको नारद जी ने कहा कि अगर ऐसा करोगे तो आप तो नर्क में जाओगे। तो बोला मगर हमको उससे मतलब नहीं, हम किधर भी जाए मगर जल्दी से तुरंत ले जाओ, जाके कृष्ण के मस्तिष्क पे लगाओ कि उनके सर का दर्द दूर हो जाए। तो वो तो नर्क में जाने के लिए तैयार है। तो कहने का मतलब है गोपीज का जो लव है वो प्योर है। और वह यहाँ पर बताते हैं कि वो भगवान के साथ में जो है डांस करना चाहती थी, रास करना चाहती, नहीं ऐसा नहीं था। भगवान उनसे इतने प्रेरित हो गए, भगवान उनके प्यार में इतने प्रेरित कि भगवान को उनके साथ में रास करना था। यानी जो गोपियां थी उनको भगवान के साथ में डांस नहीं करना था, भगवान को जो है गोपियों के साथ में डांस करना था। इतना मतलब भगवान उनके साथ में प्रभावित हो गए थे उनके प्रेम के अंदर। तो यहाँ पर इसके लिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि गोपीज का जो सेवा है वो बहुत ही सुपर एक्सेलेंस है। तो यहाँ पर भीष्मदेव मतलब यहाँ पर बता रहे हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जो भीष्मदेव है वो क्या मांग रहे हैं? भीष्मदेव ये मांग रहे हैं कि भाई जो सामने उनको गोपियों को देख के गोपियों का जो लीला है, गोपियों का स्मरण कर रहे हैं, और साथ साथ में वो जो अपना अर्जुन को भी उनको भी देखकर उनको आनंद आ रहा है और उनके बारे में भी वो बता रहे हैं। तो इस संदर्भ के अंदर हमको याद आता है कि हमको ऐसा क्यों करना चाहिए और ऐसा क्यों कर रहे हैं भीष्मदेव। तो भीष्मदेव इसके लिए कर रहे हैं कि अभी उनका अंत समय आने वाला है और वो अपना देह त्यागने वाले हैं। तो इसके संदर्भ के अंदर कुलशेखर जो आलवार है उनका एक जो श्लोक याद आता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि भाई मुझे अभी तुरंत, क्योंकि अभी मेरी स्थिति और मेरी जो हेल्थ है बहुत अच्छी है, तो आप मुझे अभी जो है मेरा प्राण ले लीजिए। क्योंकि जब अगर मृत्यु आएगी उस समय पे मुझे पता नहीं है कि मेरी स्थिति क्या होगी, मुझे कफ वत्त पित्त जो है इसकी परेशानी होगी, मेरे हाथ पैर नहीं हिलेंगे, हो सकता है मेरा जो गला चोक हो जाए, मेरे सर के अंदर दर्द हो, मेरे पूरे शरीर के अंदर दर्द हो, और उस समय मेरी जो है मैं आपको याद करने की स्थिति में नहीं रहूं। मगर क्योंकि अब मेरी हेल्थ अच्छी है तो आप मुझे अभी का अभी ले लीजिए। तो ये ऐसे प्रकार के जो मतलब भक्त होते हैं उनसे हमको बहुत सारी चीजें जो सीखने को मिलती हैं। इसके बाद में आता है कि भाई
अभी हम जैसे उसके बाद में प्रश्न एक था कि भाई मतलब भीष्म जी जो है गोपियों को क्यों याद कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमने देखा एक प्रश्न एक और उठा था कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ कुरुक्षेत्र इन कंपैरिजन टू वृंदावन बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो भीष्म देव है वो अर्जुन को तो मतलब ग्लोरीफाई कर ही रहे हैं, बट वो गोपियों को भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मतलब जो है प्रश्न उठता है कि भीष्म देव को क्या जरूरत है कि जो अर्जुन को और गोपीस को जो है प्यूरिफाई करे। तो यहाँ पर उसका उत्तर जो है जो भक्ति विकास स्वामी महाराज इतनी अच्छी तरह से बताते हैं कि जो पहले तो डाउट ये क्रिएट करते हैं कि भाई ऐसा क्यों करते हैं, मतलब भीष्म देव तो खुद शुद्ध भक्त हैं, तो वो मतलब अर्जुन की और गोपियों की जो है उनकी सराहना क्यों करते हैं, उनको ग्लोरीफाई क्यों करते हैं, उनके बारे में अच्छा क्यों कहते हैं। तो स्वयं भीष्म देव जो है शुद्ध भक्त हैं, तो इसका उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया। भक्ति विकास स्वामी महाराज बताते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत के अंदर जो बेस्ट होता है वो मतलब जो भौतिक जगत के अंदर बेस्ट होता है, यानी बेस्ट के बाद कुछ नहीं होता है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप 100% जो प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है, तो उसको और आप प्यूरिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो भौतिक जगत है। मगर आध्यात्मिक जगत के अंदर ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत के अंदर क्या है, आध्यात्मिक जगत के अंदर उसकी जो लिमिट है यानी प्योरिटी की, उसकी अनलिमिटेड है, वो और बढ़ती जाएगी और मतलब प्योरिटी के बाद में मोर प्योर, उसके बाद में मोस्ट प्योर, उसके आगे और आएगा, यानी उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। तो उसका उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो शब्द श्रेष्ठ जो बोलते हैं, श्रेष्ठ की 15 मीनिंग है। संस्कृत लैंग्वेज के अंदर श्रेष्ठ की 15 मीनिंग है। तो यानी कहते हैं एक मीनिंग कैसे, मोस्ट एक्सेलेंट, दूसरा आता है प्रॉस्परस, ओल्डेस्ट, मोस्ट लव्ड, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये ऐसे करते करते 15 मीनिंग है श्रेष्ठ की। तो यहाँ पर इसके लिए कहते हैं कि अगर जो मतलब भीष्म देव जी हैं वो भक्त की यानी अर्जुन की और गोपियों की जब उनकी सराहना करते हैं, उनके बारे में उनको ग्लोरीफाई करते हैं, तो वह कहते हैं कि ऐसे ग्लोरीफाई करने से उनकी खुद की शुद्धता और बढ़ेगी, क्योंकि भक्त जो है मतलब भगवान जो है इज मोर सेटिस्फाइड। भगवान जो है ज्यादा संतुष्ट कब होते हैं, जब उनके भक्तों को हम ग्लोरीफाई करें, उनके भक्तों के बारे में बताएं। तो इसके लिए जो यहाँ पर गोपीस की और अर्जुन की, इन दोनों की जो है बहुत सराहना करते हैं भगवान और उनके बारे में बताते हैं। भीष्म देव जी wishes to mention that love of gopis towards Krishna is more intense। और यहाँ पर जो भीष्म देव जी यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि गोपीस का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो जो है अर्जुन से भी ज्यादा है और उनसे भी ज्यादा है। तो इंटेंस देन हिज ओन, मतलब उनका जो प्रेम भीष्म देव का जो प्रेम कृष्ण के प्रति है वो कम है। किससे कम है? गोपियों से कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भक्त होता है वो हमेशा कहता है कि मैं तो दास का दास का दास का दास हूँ। तो ऐसे हमारा जब भी ऐसी मनोवृत्ति और ऐसे हमारा भाव होता है तो तभी हम जो भक्ति के अंदर और आगे अग्रसर हो सकते हैं। और ये यहाँ पर भीष्म देव जी ये बताना चाहते हैं कि जो गोपियों का जो प्रेम कृष्ण के प्रति है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, यानी हमारी सोच से बहुत 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 परे है। और लास्ट का जो पॉइंट था, एक और प्रश्न था जो था कि कुरुक्षेत्र और वृंदावन के अंदर जो एक्सप्लेनेशन बताया गया कि कुरुक्षेत्र जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है वृंदावन से। तो इसको समझने के लिए मतलब जो है बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है और बहुत अच्छी तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अपनी टिप्पणियों में बताया कि हम जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के अंदर वहां पर लोग जाते हैं जब वहां पर सोलर एक्लिप्स होता है, यानी जब सूर्य ग्रहण होता है, तो वहां पर जो समंता पंचक ऐसे करके वहां पर नदियां हैं, उनके अंदर जाके वहां पर स्नान करने से हमको बहुत सारा पुण्य मिलता है और साथ ही साथ हमको हमारे भक्ति के अंदर और हमारे जो इसके अंदर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के अंदर हमारी प्रगति होती है। तो इसको बहुत ही शुभ माना गया है कि जब भी सोलर एक्लिप्स हो यानी जब भी सूर्य ग्रहण हो तब जाके वहां पर हमको जो नहाना चाहिए, उसके अंदर जाके उसका स्नान करना चाहिए। तो यहाँ पर जब ये पता चला कि सूर्य ग्रहण होने वाला है और कृष्ण
वहां पर हैं, मतलब कुरुक्षेत्र के अंदर, तो व्रजवासी उनको ये समाचार मिले तो वो सब वहां पर कुरुक्षेत्र के अंदर गए। तो कुरुक्षेत्र के अंदर जब वहां पर गए तो उन्होंने अभी व्रजवासी तो जाएंगे क्योंकि उनको कृष्ण से मिलना है, मगर व्रजवासी के अंदर से सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो वो राधा रानी है, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। तो वैसे राधा को और भी उत्सुकता थी, क्योंकि उन्होंने कितने सालों से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे। तो इस वजह से इसमें बताते हैं कि उनकी स्थिति कैसी थी, राधा रानी की स्थिति कैसी थी, ये इसका हम ये अचिंत्य है, मतलब हम उसको चिंतन भी नहीं कर सकते कि राधा रानी की कितनी जो पीड़ा थी। वो कहते हैं कि जो एक आंख आंख जो है, आंख जब ब्लिंक करती है, जब वो आंख जो झपकाती है, तो एक झपकना, आंख का एक झपकना 12 वर्ष या उससे ज्यादा का अनुभव हो रहा था उनको, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर पा रही थी। तो सोचिए कि उन्होंने कितने बार अपनी दिनों के अंदर कितने बार उन्होंने आंखों को झपकाया होगा। तो ऐसे कितने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों साल बीत गए होंगे राधा रानी को, ऐसे उनको अनुभव हो रहा था, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण से नहीं मिले थे। तो राधा जब फिर वहां पर कृष्ण से मिली, जब व्रजवासी उसके साथ में गई और राधा कृष्ण से मिली, बट वहां पर राधा ने क्या कहा, राधा ने कहा कि ये जिस कृष्ण को मैं जानती हूँ वो ये कृष्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर कृष्ण जो है, उन्होंने राजा की तरह वेशभूषा की हुई थी, उनके मतलब मुकुट पहना हुआ था, उनके पूरे शरीर के ऊपर अच्छे वस्त्र पहने हुए थे उनके। तो ऐसी राधा रानी ने उनका, वो कह रहे कि ये मेरा कृष्ण, कृष्ण तो है मगर ये मेरा, जिस कृष्ण को मैं जानती हूँ वो ये कृष्ण नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी यहाँ पर बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि जिस राधा को इतने हजारों नहीं लाखों साल, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक पलक झपकने के अंदर 12 वर्ष या उससे ज्यादा का समय का जो होता है सेपरेशन, इतना उनको हो रहा था। तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों सालों का जो सेपरेशन था, ऐसी उनकी उत्सुकता थी कि भगवान श्री कृष्ण से मिले। और उसके बाद में जब उनको कृष्ण मिले, तो मिले भी तो राधा रानी कहती कि ये मेरा कृष्ण नहीं है। तो वहां पर क्या कहते हैं, राधा कहती है कि इस कृष्ण को अभी यहाँ से हम लोग हाईजैक करके यहाँ से हम इसको जो है ले जाएंगे। कहाँ पर ले जाएंगे? हम इसको वृंदावन ले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर अभी राधा रानी वो तो कर नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो जो भी व्यक्ति या जो भी जीव राधा रानी को इस कार्य में उनको सहायता करे, वो राधा रानी को कितना प्रिय होगा। तो ये समझने के लिए जो है यहाँ पर कहते हैं कि कृष्ण को किडनैप करना है, किडनैप करके हमको वृंदावन ले जाना है। तो वृंदावन ले जाने के लिए कृष्ण जो राधा रानी की जो सेवा करेगा, राधा रानी सबसे उच्चतम भक्त है भगवान श्री कृष्ण की। और उस भक्त की अगर हम सेवा करेंगे, छोटी सी भी सेवा करेंगे किसी किसी भी तरह से, कि हम उसकी जो मन की इच्छा है वो हम पूरी करेंगे, उसकी जो इच्छा है वो पूरी करेंगे, और भगवान श्री कृष्ण को वहां से लेकर वृंदावन ले जाएंगे, तो वो कितनी हमारे ऊपर हमसे कितनी प्रभावित होगी, हमसे कितनी आनंदित होगी, और हमको हमारी कितनी शुक्रगुजार होगी कि वो भगवान हम और भगवान के पास हमको ले जाएगी। तो ये राधा रानी की कृपा पाने के लिए जो है वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बताया, इसका एक्सप्लेनेशन दिया। और जब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये कहा कि भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं वहां पर कुरुक्षेत्र में जाके समंता पंचक जो नदियां हैं वहां पर अपना छोटा सा कुटीर वहां पर बनाकर वहां पर जाके भजन करूं। तो लोगों ने, गौड़ीय वैष्णव के अंदर से लोगों ने इस बात को उन्होंने उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा ये क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि गौड़ीय वैष्णव जब भी होते हैं वो भजन कहाँ पर करना पसंद करते हैं? नवदीप धाम के अंदर है, पुरी के अंदर, वृंदावन के अंदर, और ऐसे जगहों पे करना पसंद करते हैं, ना कि कोई जाके कुरुक्षेत्र के अंदर करने के लिए। मगर यहाँ पर बताते हैं कि क्योंकि जो हमारे गौड़ीय वैष्णव की पूरी जो हमारी पूरी जो प्रार्थना है वो डिपेंड करती है सेपरेशन के ऊपर। हम लोग ज्यादा प्रयास करते हैं कि जो जो भाव राधा को कृष्ण के साथ में सेपरेशन के अंदर जो अनुभव हुआ, उसके अंदर हम अगर राधा रानी की सेवा कर सकें और भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए कुरुक्षेत्र को यहाँ पर ज्यादा महात्म्य बताया गया। इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। किसी को कोई प्रश्न है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।
हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आवाज आ रहा है प्रभु? Yes, Prabhu. हरे कृष्णा। या ओके, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु। ये आपने इतना अच्छा क्लास लिया और इतना शॉर्ट नोटिस पे आपने यू प्रिपेयर्ड सो नाइसली प्रभु। मतलब पूरा विष्णु स्तुति इम्पोर्टेंट है, विष्णु स्तुति का हर श्लोक इम्पोर्टेंट है, और इसमें भी आज के श्लोक में जो है गोपियों का इम्पोर्टेंस है, तो दैट आपने बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट किया, कैसे गोपियां जो है इम्पोर्टेंट है। और इसमें से हम लोग ये भी सीख सकते हैं कि जैसे शास्त्रों में कहा गया गोपियां टॉप मोस्ट डिवोटीज हैं, तो पितामह भीष्म 12 महाजनों में से एक है। वो भी उनकी अगर मतलब उनको मतलब मृत्यु के समय उनको याद कर रहे हैं, मतलब अभी यह छोड़ना है मुझे, और उस टाइम पे जब याद करें दैट मीन्स हाउ इम्पोर्टेंट गोपीज आर, कितने इम्पोर्टेंट है गोपीज। तो ये एक इस श्लोक से हम लोग को सीखने मिलता है। बहुत अच्छा था, आपने बहुत सारे पॉइंट बोले प्रभु। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। All glories to Srila Prabhupada. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच उद्धव प्रेस्ट प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने दैट यू स्टार्टेड विद दैट 5 क्वेश्चंस एंड वो आपने किस तरह से प्रेजेंट किया प्रभु। थैंक यू सो मच उद्धव प्रेस्ट प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास प्रभु। प्रभु जी, इस हम ये जो श्लोक है इससे हम मतलब ये सीखते हैं क्या, मतलब एट द एंड इफ भी अगर हमें अगर हमें भगवान का स्मरण नहीं हुआ और भक्तों का स्मरण हुआ, सो फॉर मतलब उससे भी हम भगवत धाम हम लौट सकते हैं। कैन वी अंडरस्टैंड लाइक दिस ऑल्सो प्रभु? लाइक यहाँ पे अभी जैसे टॉप मोस्ट डिवोटीज के बारे में बताया जा रहा है। हरे कृष्णा, वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। व्हाट आई अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ जो मैं समझ सकता हूँ इसके अंदर वहां पर भी जो श्रीला प्रभुपाद अपने पर्पट्स में भी क्लियरली लिखते हैं, तो जो वर्ड्स लिखते हैं मैं जरा उसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो एग्जैक्ट वर्ड्स प्रभुपाद क्या लिखते हैं। देखिए, Vishwade wishes to mention that the love of the gopis towards Krishna is more intense than his own, and it is so intense that it is unimaginable. ये प्रभुपाद अपने लेक्चर्स के अंदर बताते हैं, और यहाँ पर क्या कहते हैं, Lord is satisfied more when his pure devotees are glorified. यानी भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, अगर उसके बारे में हम चिंतन करेंगे, उनको हम ग्लोरीफाई करेंगे, तो भगवान इतने संतुष्ट, उससे ज्यादा संतुष्ट होते हैं। और हमने वो श्लोक भी है कि ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना हृदयेषु वा, माने भगवान कहाँ पर जो विराजते हैं, कहाँ पर रहते हैं भगवान, वो किसी के हृदय में नहीं रहते, योगियों के हृदय में नहीं रहते या वैकुंठ में नहीं रहते। भगवान वहां पर रहते हैं जहाँ भगवान के बारे में चिंतन हो, भगवान के बारे में चर्चा हो, भगवान के बारे में कीर्तन हो, तो वहां पर रहते हैं। तो अगर जब हम किसी को ग्लोरीफाई करेंगे, यानी यहाँ पर जो भीष्म पितामह है वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं गोपियों को, और अर्जुन को भी कर रहे हैं, गोपियों को भी कर रहे हैं, मगर जो उच्च स्तर के डिवोटीज हैं उनके बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी विल सेटिस्फाई द लॉर्ड। और हमारा पूरा जो सेवा का मतलब क्या है, सेवा का अर्थ क्या है, हमको भगवान को सेटिस्फाई करना है, अपने इंद्रियों को नहीं, या हमको वो नहीं चाहिए कि हम भगवान के धाम में जाए, हम भगवान को संतुष्ट करें। फिर वो भले कहां पर भी, वैष्णव का जो आचरण ये होता है कि भगवान जहां पर भी रखे, वो अगर हमको नरक में रखना चाहिए, जैसे गोपियों ने यहाँ पर क्लियरली स्पेसिफाई किया कि हम ले जाओ, हमारे चरणों की धूल ले जाओ, भले हमको नरक में जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार हैं, मगर हमको कृष्ण के सर में दर्द नहीं होना चाहिए। तो ऐसा भाव होना चाहिए। तो हम वो भाव, ठीक है, वो स्तर पे आने के लिए हमको टाइम लगेगा, समय लगेगा, मगर हमारा जो मनोभाव ऐसा होना चाहिए कि भगवान के दाम में नहीं, भगवान जहां रखे, भगवान को जहां इच्छा हो वहां पर रखे, मगर ये रखे कि हम जो है उनकी स्मृति हमारे अंदर रहे, हम उनको हमेशा स्मरण करते रहें, ये हमको होना चाहिए। आई होप आई रिप्लाइड योर क्वेश्चन। हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू सो मच उद्धव प्रेस्ट प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे।
हरे यस कृष्णा। सुरत माधव प्रभु। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर दंडवत क्लास था प्रभु। एंड जैसे आप बता रहे थे ना कि मतलब जो डिवोटी बता रहा था कि सब भगवान का है, भगवान का है। तो एक राधानाथ स्वामी महाराज का एक याद आया। वो बता रहे थे कि एक बार किसी का बहुत बड़ा घर का इनॉग्रेशन था और उनको बुलाया गया था। तो फिर महाराज बता रहे थे कि उस घर में जितने भी डिवोटी वगैरह आए थे, वो एक्चुअली उस घर का ज्यादा आनंद ले रहे थे, या फिर उस फैसिलिटीज का ज्यादा आनंद ले रहे थे। वो जो ओनर था वो क्या, मतलब वो नॉट जस्ट दैट इन, वो बता रहे थे जो ओनर रहता है वो हमेशा टेंशन में रहता है, मेंटेनेंस, कहीं ये टूट ना जाए वो टूट ना जाए। लेकिन जो वहाँ पे गेस्ट आते हैं वो लोग पूरा फैसिलिटीज का आनंद लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो क्या है, दे हैव नो अटैचमेंट टू दैट। लेकिन जो ओनर है उसको लगता है अरे मेरा घर है, इतना पैसा खर्चा करके मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, कहीं पेंट खराब ना हो जाए, ये जो नए नए मैंने फर्नीचर लाए वो कहीं टूट ना जाए। तो बोल रहे थे कि ऐसा होता है। तो जैसे आपने कहा कि जब हम सब लॉर्ड का बोल के सोचेंगे एंड व्हेन वी डोंट हैव अटैचमेंट, तो एक्चुअली हम लोग वो जो है उस चीज में आनंद से रह सकते। नहीं तो भले ही बड़ा घर हो, सारे फैसिलिटी हो, लेकिन ज्यादातर टाइम टेंशन में जाता है। और उसी तरह एक बार जगत साक्षी प्रभु बता रहे थे कि मतलब वो काफी टाइम दुबई आते हैं ना, तो बता रहे थे कि हम लोग दुबई में रह के इंडिया में घर वगैरह बना लेते हैं, लेकिन जब छुट्टी 1 महीना जाता है तो वो जैसे वहां जाते हैं, वहां पे हमने जिसको केयर टेकर रखा है वो हमको सब देता है कि ये इनकम टैक्स का नोटिस है, ये वाटर इलेक्ट्रिसिटी वहां से नोटिस आया है। तो अपना 1 महीना उसी चक्कर में निकाल देता है, और 11 महीने जो है वो नौकर जो है आराम से उस घर में आनंद ले रहा है। और जिसने इतना मेहनत करके बांधा है वो 1 महीना जो आता है वो भी इधर उधर चक्कर काटने में उसका चला जाता है। तो दिस इज द मतलब अदर साइड ऑफ आवर मटेरियल लाइफ। भले हम कुछ भी करें, जैसे आपने कहा अगर भगवान का सोच के हम करेंगे, अपना भी लाइफ विदाउट एंग्जाइटी अच्छी तरह से गुजर सकता है। हरे कृष्णा। थैंक यू ब्रो। वेरी वेरी नाइसली एडेड प्रभु। सिमिलरली एक और आता है कि हम लोगों ने बचपन के अंदर एक स्कूल के अंदर ये पढ़ा था, एक लेसन था जिसके अंदर बताया गया कि वो एक मतलब टॉम राम से ऐसे करके था, उसका एक कैरेक्टर था। तो 2 भाई थे, उसके अंदर एक भाई पूरी जिंदगी भर के मेहनत करता रहता है और वो पैसा कमाने के पीछे लगा रहता है, और दूसरा भाई जो है वो नफट निठुर रहता है, कुछ काम नहीं करता है। मगर दोनों के पास, मतलब ये एक उदाहरण है समझाने के लिए कि वो जो भाई था जो मेहनत करता है, वो अपनी जो है जरूरतें पूरी कर पाता था, इतना ही था। मगर जो उसका जो छोटा भाई था वो नफट था, वो इतना मतलब दुष्ट था कि उसने क्या किया, उसने एक बहुत ही धनी औरत, जो बहुत ही धनी थी, उस औरत से उसने शादी किया। और वो जो खुद जैसा समझो 25-30 बरस का होगा, उसने शादी की 80 बरस की औरत से, बहुत धनी औरत थी और विधवा थी, उसे शादी किया। बोला क्यों? बोला ये मर जाएगी तो उसकी सब दौलत तो मेरी होनी है, तो मेरे भाई को भले ऐसे मेहनत करने दो, पूरी जिंदगी भर मेहनत करने दो, मैं तो एक ही झटके में, ये औरत मर जाएगी, पूरा पैसा मेरे को मिल जाएगा। तो ये हमने लेसन पढ़ा था स्कूल के अंदर। तो कहने का मतलब है कि आदमियों की जो मेंटालिटी है, जैसे अभी आपने बताया कि घर को बनाया है, तो घर को जो, अगर घर का मालिक यही सोचता रहेगा कि मैं इसको अपने भोग के लिए रखूं, और फिर उसके अंदर चिंता रहेगा कि अरे इसका ये पाइप टूट गया, आज दीवार के अंदर क्रैक आ गया, आज ये पेंट करना है, आज वो करना है, फर्श के अंदर टाइल्स निकल गई, ये करना है, ये सोचते रहेगा, तो बस उसका वो आनंद नहीं ले पाएगा। मगर द मोमेंट ही सेज दैट ओके आई हैव मेड इट, दिस इज, जैसे गोपियां कहती हैं कि भाई हमको कुछ भी नहीं चाहिए, जो हमारा है वो तो तुम्हारा है ही है, जो हमारा है वो सब तुम्हारा ही है, और हमको आपसे कुछ चाहिए नहीं। तो दिस काइंड ऑफ अप्रोच अगर डिवोटीज के अंदर रहेगा, तो वो जगह हाँ ठीक है, टूट गया ना, बना देंगे। भगवान जी को मतलब ऐसे टूटी हुई जगह के अंदर नहीं रखेंगे। जब उसका भाव ऐसे रहेगा कि भगवान को ऐसी टूटी हुई जगह के अंदर या ऐसे खराब वाली जगह के अंदर नहीं रखना है, तो वो उसको उसके साथ में आसक्ति नहीं होगी। वेरी नाइसली एडेड। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु, आपने इतना अच्छा समझाया प्रभु जी क्लास में। जैसे स्टार्टिंग में आपने जो एक्सपेक्टेशन का गोपियों के द्वारा आपने जो पॉइंट समझाया, बाद में जैसे सूरत माधव प्रभु जी ने भी याद किया कि ये जैसे आपने वो सर्वभौम प्रभु जी का लेक्चर से आपने वो समझाया कि सब भगवान का है और अंत में भगवान मेरे है, तो वो भी एक बहुत अच्छा समझने मिला प्रभु जी। और बाद में जैसे आपने जो भक्ति के जो 9 अंग है, श्रवणम कीर्तनम, उसके आपने सब एग्जाम्पल देके समझाया प्रभु जी। और अंत में जैसे आपने वो सोलर एक्लिप्स का भी इम्पोर्टेंस बताया प्रभु जी। बहुत आपने इंफॉर्मेशन बहुत दिया इसमें प्रभु जी, और इसमें समझने भी बहुत अच्छा मिला। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। All glory to Srila Prabhupada. Hare Krishna. हरे कृष्ण Yes, प्रभु जी। Satyaraj Prabhu. प्रभु जी, समीर प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं। नहीं प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू समीर प्रभु। उद्धव प्रेष प्रभु, क्लास बहुत अच्छा था। और आप जैसे बता रहे थे ना कि प्रेम का स्तर, उसमें बहुत सारे लेवल्स है, वो भी पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि हम लोग सोच नहीं सकते कि गोलोक धाम में जो प्रेम का स्तर रहेगा, तो हम लोग ऐसा सोचते कि मैं ऐसा सोच रहा था प्रभु जी कि श्री श्री राधा गोपीनाथ जी में इतने भक्त हैं, तो हर एक भक्त का अलग अलग डिजायर रहता है। एक भक्त है, वो हमेशा सोचता है कि मैं राधा गोपीनाथ जी का श्रृंगार करने के लिए, जब भी उनका टर्न रहता है, मैं और इससे अच्छा कैसा करूं, मैं और इससे अच्छा कैसा करूं। और एक दूसरी माता जी है, वो भगवान के लिए भोग और कैसा अच्छा करूं, मतलब। तो मैं वही सोच रहा था, जैसे आप बोल रहे थे कि गोलोक धाम में जैसे गोपियों का प्रेम सबसे श्रेष्ठ है, फिर कुरुक्षेत्र के बारे में बताया। तो प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. All glory to Srila Prabhupada. Yes, Samir Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास था, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक प्रभु जी। जस्ट वो अभी जैसे सूरत माधव प्रभु जी ने जो ऐड किया था आसक्ति के बारे में, प्रभु जी एक तो मतलब पॉइंट जस्ट मैं ऐड कर रहा था कि हम लोग कितना भी बोलेंगे, मतलब बोलते ही है कि ये सब कुछ कृष्णा का है, लेकिन जब भी अभी हमारी कार रहेगी, कार को कुछ हो गया तो पहले टेंशन आता है, अरे बाप रे इसमें भी इतना खर्चा होगा। वॉशिंग मशीन बंद पड़ गया तो हम लोग बोलते हैं अरे बाप रे अभी इसको रिपेयर करने में कितना खर्चा होगा। तो वो आसक्ति तो प्रभु जी बनी ही रहेगी, कितना भी हम लोग करेंगे। तो मेरा पॉइंट मतलब ये बोलने का चाह रहा था कि जितना हो सकेगा उतना मटेरियल बॉन्डेज कम करने के लिए, मटेरियल जो हम लोग लेते हैं खुद के सुखों के लिए, लेजर के लिए, वो जितना कम करेंगे उतनी आसक्ति अपनी ऑटोमेटिकली कम रहेगी। बराबर है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बेसिक इसके लिए तो है ना कि अगर आप वर्णाश्रम को फॉलो करोगे, जिसके अंदर बताते हैं कि अगर जो इको विलेज बनाया है तो वहां पर क्या है, सेल्फ सफिशिएंट, जितना हमको चाहिए इतना बस अंग को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, ऊपर से छत चाहिए, और खाने के टाइम पे 2 टाइम का खाना चाहिए, और उसके अंदर भी हमको जो सबसे सिंपल खाना चाहिए, ये जरूरत है। तो जमीन का छोटा सा टुकड़ा, एक बैल और एक गाय, ये हो तो उससे हम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। बट हम लोगों ने जैसे जैसे चीजों का जो आविष्कार किया और जो जो चीजों की हमने खोज की, उसको ऊपर हम लोग आसक्त होते गए, फिर वो चीज हमारे लिए एक जरूरत बन गई है। पहले जो एसी जरूरत नहीं थी, अभी वो जरूरत बन गई। पहले वो लग्जरी था, उसके बाद में वो जो है नेसेसिटी हो गया, अभी वो वांट हो गया, अभी हमको चाहिए। तो ये हमारी मतलब जो हम लोगों ने चीजों को बढ़ाया। अभी इसका एग्जैक्टली इफ यू सी इन जापान, देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट उन लोगों ने वहां पर वो बना के रखा है कि सिर्फ जो बहुत सारे लोग हैं जापान के अंदर ये फॉलो कर रहे हैं कि दे विल ओनली हैव 2 शर्ट्स एंड 2 पैंट्स, व्हाइट कलर का शर्ट और जो नेवी ब्लू कलर की पैंट, बस वही पहनेंगे और धोएंगे और पहनेंगे। घर के अंदर सबसे कम फर्नीचर, बोलते हैं जरूरत अगर टेबल कुर्सी की जरूरत नहीं, हम नीचे बैठ के खा सकते हैं, तो हम उधर टेबल कुर्सी क्यों रखें। ये जापान के अंदर ऑलरेडी कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है। बोलता है जो चीज हम ज्यादा रखते हैं
एक तो वो मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ से सोचते हैं कि भाई ये हमारे लिए एक बोझ है, इसको मेंटेन करना, ये मेंटेन करना बोझ है। मगर उन्होंने इसको ऑलरेडी ले लिया है अपने लाइफ के अंदर कि दे आर मिनिमाइजिंग देयर थिंग्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको कम कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर सपोज खराब हो गया, जैसे अभी दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे, कोई चीज हमारी, जैसे आपने बताया गाड़ी खराब हो गई, तो गाड़ी खराब हो गई, ठीक है, मतलब गाड़ी खराब हो गई तो उसको हमने, ठीक है, खर्चा है तो करना है। क्यों खर्चा? अगर हम ये सोचेंगे कि भाई खर्चा, अरे यार मुझे ये घूमने फिरने के लिए गाड़ी, अब मेरे को जाने का है, यहाँ पे पार्टी है, मेरे को महाबलेश्वर जाने का है, मेरे को यहाँ पर जाना है, वहां जाना है, इसके लिए गाड़ी चाहिए, तो प्रॉब्लम है। मगर आप ये भी सोचोगे कि मुझे गोपीनाथ टेम्पल में, राधा गोपीनाथ टेम्पल में जाना है, राधा रास बिहारी में जाना है, राधा गिरधारी में जाना है, तो वो सोचेंगे कि, तो वो बोलेगा अरे नहीं, कोई बात नहीं ना, अभी हमको भगवान के लिए करना है। जब ये ऐसी, इट्स नॉट इजी, आपने जो प्रश्न उठाया है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इट्स नॉट इजी, बट ग्रेजुअली, जैसे बोलते हैं ना, सतत करते रहेंगे वो चीज को, हम सतत अपने आप को जो उसमें अंदर डालने का प्रयास करेंगे, तो हमारी जो जरूरतें हैं, इसके लिए वो जो डायलॉग बोलता है ना कि मेरे जमीर में दम क्यों है, क्योंकि मेरी जरूरतें कम है। तो हमारी जरूरतें कम होंगी तो हमारे जमीर में भी दम होगा। तो ऐसा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने वो वर्णाश्रम का बताया वो परफेक्ट है, मतलब हम लोग 4 वर्ण में जाएंगे तो अपना मटेरियल डिटैचमेंट हम लोग करते रहेंगे जैसे लाइफ प्रोग्रेस होता जाएगा, और फिर फाइनली हम लोग का मतलब ये इसमें से वो एकदम बढ़िया था, परफेक्ट था प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ठाकुर, दंडवत प्रणाम। बहुत ही अच्छा क्लास था प्रभु आप है कहाँ? मैं आपको कितने दिनों के बाद में आपका आवाज सुना है। प्रभु है किधर आप? बस इधर ही है, बस आप लोग का कृपा से जिया हुआ है प्रभु। अभी मैं क्लास से पहले सुन रहा था, मैं पूछूंगा कि भाई प्रेम प्रभु कहाँ पे हैं प्रभु? मैं यही सोच रहा था कि मैं पूछूंगा क्लास में कि कहाँ गए प्रभु, कहाँ गए? नहीं है प्रभु, थोड़ा काम का सिलसिला में थोड़ा डूबा हुआ है, काम का थोड़ा प्रेशर है। अभी क्या करो प्रभु, तो करना तो पड़ेगा, कर्म तो पहले करना पड़ेगा, भक्ति भी करना पड़ेगा साथ साथ। तो मेरा कहने का है बहुत अच्छा क्लास था। जैसे आपने अभी डिस्कवरी और इन्वेंशन के बारे में बताया, इतना दिन तो मेरे को मालूम था कोलंबस डिस्कवरी या फिर अमेरिका। तो अभी जैसे आपने यहाँ पे जैसे आपने भक्ति लाइन में भी जैसे बताया बहुत अच्छा लगा, और दूसरे जैसे कुरुक्षेत्र का जो महत्व बताया वो वृंदावन से भी अच्छा है। उस आज मैंने जानकारी हो इसके बारे में, बहुत अच्छा क्लास था। हाँ बहुत वही है बहुत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा।